Hello everyone and welcome back to channel. Today we are going to discuss about how to make 1 lakh rupees per month online and why I am making this video. Like what is the reason behind that? The reason is pretty simple is that I am just going through the data of Indian graduate and what I found is that only 5% of the people every year who are graduating from the college are making more than 1 lakh per month. It means that 95% of the people who are graduating from college are making below 1 lakh per month, and that is not the right sign, right? Why? Because I don't think so it is that hard to cross this number, and it is just about the right knowledge. If we have the right knowledge and if we take the right action towards that, we can achieve this number pretty fast. And second thing is that, let's say in our education system we are spending more than 20 years, right? 18 to 20 years, and still we are not able to hit this number, right? But what I am going to teach you today, if you just follow those steps in just max 180 days, and if you follow that properly, just in 90 days you can hit this number. Okay, and that is what today we are going to cover about, like how to make 1 lakh rupees per month online income consistent. Okay, so here are some of the steps that I have written, and here are some of the points that I want to cover today, that if you understand this point, then you are going to hit this number. Okay, it doesn't matter you have the money in the pocket, doesn't matter you are broke, whatever it is. Because for whom I am making this video, I just want to tell you, I am making this video for my past self. Okay, this is my past self into college, first year or a second year of college, who is broke, no money in the pocket, 0 rupees. एंड अगर मैं यहाँ से चालू करना चाहता हूँ इस पोजीशन से, तब भी मैं 180 डेज के अंदर इस गोल को हिट कर सकता हूँ. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमको भी ऑनलाइन पैसा बनाना, इट मीन्स दैट हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सेल समथिंग ऑनलाइन. ठीक है, हमको किसी तरह का बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, पैसा बना पाएंगे. तो एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करने के क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं. ठीक है, सो पहला जो स्टेप है दैट इज अ मार्केट. ठीक है, यू हैव टू फाइंड द राइट मार्केट. सेकेंड इज द niche. Okay, inside of that market you have to find the right niche. Then client avatar, or you can say ICP, ideal customer persona. ठीक है, then problem, what problem you are solving for the people. And lastly is the offer. It means that what you are offering, what is your product, what is your service. Okay, that is your offer. Now I will go deep into all of this stuff. ठीक है, सो डोंट वरी, मैं हर एक चीज को डीप में आपको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है एंड हाउ टू सिलेक्ट ऑल दिस स्टफ प्रॉपरली. ठीक है, सो फर्स्ट इज द मार्केट. ठीक है, तो जैसे I wake up and I decided कि I want to start online business. So first thing what I should do is that I have to figure out the right market to start with, and why it is important. Why if I start with the wrong market, nothing is going to work. अगर आपने एक wrong market के साथ चालू किया तो ये बाकी कोई भी चीजें काम नहीं करने वाली. Doesn't matter how skillful you are. Okay, and I will prove that. So first thing is that market. तो market किस टाइप का आपको चूज करना है? You have to choose the growing market. ठीक है, यू हैव टू चूज द मार्केट दैट इज ग्रोइंग एवरी ईयर. हर साल नंबर ऑफ पीपल इनटू दैट मार्केट ऐड हो रहे, कम नहीं हो रहे. ठीक है, लोग उस मार्केट के अंदर आ रहे, जा नहीं रहे उस मार्केट से. एंड सेकेंड थिंग इज दैट एटलीस्ट अगर वो मार्केट ग्रोथ वाला मार्केट नहीं है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है मार्केट के अंदर, तो मार्केट एटलीस्ट नॉर्मल होना चाहिए. मतलब ना नए लोग आ रहे हैं ना पुराने लोग जा रहे हैं, स्टेबल मार्केट. अगर उस टाइप का भी मार्केट है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक मनी विद दिस मार्केट. The only thing is that जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, and that is a dying market. आपका जो मार्केट है वो dying market नहीं होना चाहिए. So what is the example of a dying market? Let's take the example of this. What is the example of a dying market? So newspaper industry. ठीक है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री. न्यूज़पेपर जो है वो हर साल डाइंग मार्केट है. मतलब आप देखो कि हर साल जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पिछले 50 सालों के अंदर, वो कम हो रहा है नंबर. अभी लोग ज्यादा स्पेंड किस चीज के ऊपर कर रहे हैं? अपने डिवाइसेस के ऊपर कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं. सो दिस इज अ डाइंग मार्केट. सो इफ यू चूज अ डाइंग मार्केट, देन योर बिजनेस इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म. ओके, सो द ओनली मेक श्योर आपको ये करना है कि जो भी मार्केट आप चूज करो वो डाइंग मार्केट ना हो. चाहे वो नॉर्मल मार्केट हो चल जाएगा, ग्रोथ मार्केट है तो बहुत अच्छी बात है.
and 90% of the time what you are going to choose is going to be a normal market. So don't worry about it, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है। आप जो भी मार्केट चूज करोगे इट इज मोस्टली गोइंग टू बी फाइन, जस्ट एक बार क्रॉस चेक करना कि डाइंग मार्केट ना हो। तो मार्केट के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, दैट यू वांट टू स्टार्ट let's say service business, online service business. So what you start is AI agency, AI automation agency, or you can start meta ad agency, digital marketing agency, or you want to start with a skill based something, ठीक है। आपको स्किल बेस्ड कुछ करना है तो आप बोलोगे कि आई वांट टू बी अ फिटनेस कोच, ठीक है। आई वांट टू बी फिटनेस, मैं लोगों को फिटनेस सिखाऊंगा, योगा सिखाऊंगा, या आई वांट टू बी अ रिलेशनशिप कंसल्टेंट, समथिंग लाइक दैट, और यू कैन से फाइनेंस कंसल्टेंट, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। या यू डिसाइडेड आई वांट टू सेल सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैं ऑनलाइन शैम्पू बेचूंगा, कुछ भी ट्राइपॉड बेचूंगा, लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज लाइक नॉर्मल मार्केट्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। दिस आर जस्ट एग्जांपल ऑफ सम मार्केट्स। आई होप कि मार्केट वाली चीज आपको क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नीश। सो नाउ द सेकंड थिंग इज दैट नीश। सो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, हाउ टू सिलेक्ट अ नीश। नीश सिलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है। बहुत सारे लोगों को नीश क्या होती है यही क्लियर नहीं होता, एंड ये सारी चीजें क्या है। सो आज मैं बहुत ही सिंपल वर्ड के अंदर आपको नीश क्या होती है वो सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, एंड किस तरीके से एक नीश सिलेक्ट की जाती है, उसकी क्या प्रोसेस होती है वो भी समझाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ नीश। तो यहाँ पे समझो, ये है आपका मार्केट, ठीक है। और इस मार्केट के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल छोटे मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये बड़े मार्केट के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल छोटे मार्केट एग्जिस्ट करते हैं और उसे कहते हैं नीश। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सो दिस इज अ मार्केट ऑफ फिटनेस, लेट्स से, ठीक है। ये ओवरऑल मार्केट क्या है, फिटनेस के अंदर का मार्केट है। बट नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इनटू द फिटनेस मार्केट आल्सो। सो अगर मैं इसमें से एक नीश पकड़ूंगा तो ये नीश मेरी ऐसी होगी कि फिटनेस कोचिंग, फिटनेस कोचिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स और ओनली मैन, ठीक है। फिटनेस कोचिंग फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स ओनली मैन। ये क्या हो गई, ये एक नीश हो गई। मतलब मैं सेल तो फिटनेस ही कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल हु आर मैन टू गेट फिट, ओके, बट दैट इज वेरी नीश स्पेसिफिक। मैंने एक नीश डिसाइड की कि इस बड़े मार्केट के अंदर इन्हीं छोटे लोगों को जो इस क्राइटेरिया में बैठते हैं, मैं बस उन्हीं के लिए काम करता हूँ। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, अगर कोई मैन नहीं है तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, या बोल सकते हो मैन अबाउट 30, जो 30 के ऊपर मैं उसी के साथ काम करूंगा। सो दैट इज अ नीश, ओके। सो नाउ हाउ टू फाइंड द वन, हाउ टू फाइंड द नीश। नीश किस तरीके से फाइंड की जाती है, ठीक है, उसको समझते हैं। तो नीश फाइंड करने के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहां पे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज द प्रोफेशन, सेकेंड इज द पेइंग कैपेसिटी, थर्ड इज द पेन पॉइंट, एंड फोर्थ इज द स्किल, ठीक है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन एट अ टाइम। फर्स्ट इज द प्रोफेशन। इट मीन्स दैट किस टाइप के लोग हैं उस पर्टिकुलर, जैसे मान के चलो यू डिसाइडेड दैट आई वांट टू टारगेट अ फिटनेस मार्केट, ठीक है। आई वांट टू टारगेट अ फिटनेस। अब मैं इसका एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिटनेस मार्केट को टारगेट करूंगा। अब उस फिटनेस मार्केट के अंदर मेरे को मेरा नीश ढूंढना है, तो मैं कैसे ढूंढूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक श्योर कि उस पर्टिकुलर फिटनेस मार्केट के अंदर व्हाट इज द प्रोफेशन दैट आई लव टू वर्क विथ। मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ मेरे को काम करने में मजा आता है। तो ये हो सकता है आईटी प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये हो सकता है यू कैन से डॉक्टर्स, ये हो सकता है बिजनेस ओनर्स, ये हो सकता है लॉयर्स, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे बहुत अलग अलग प्रोफेशंस हो सकते हैं जिसके साथ मुझे काम करने में मजा आता है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन ऑल दोज प्रोफेशंस। जो भी टॉप 5 प्रोफेशंस है वो आप नोट डाउन करो, ओके। लेट्स से यू नोट डाउन टॉप 5 प्रोफेशंस, ओके। नाउ सेकेंड इज द पेइंग कैपेसिटी।
what you have to do, you have to write the paying capacity of that market. Let's say IT professional, so IT professional की paying capacity कितनी है, जैसे on an average एक IT professional अगर हम average पकड़ ले तो कमाता है साल के 10 लाख रुपए मान के चलते हैं. सो पेइंग कैपेसिटी कितना हो गया उनका, मतलब इट 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 हैज टू बी लाइक हाई टिकट पेइंग कैपेसिटी. और हाई टिकट क्या होता है, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है हाई टिकट जो आपने बहुत बार सुना होगा. तो मैं आपको सिंपल वर्ड में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. हाई टिकट का मतलब ये होता है कि एक इंसान एनुअली कितना कमाता है. सपोज ये उसका एनुअल इनकम है 10 लाख, तो इसका 10% अगर आप आपकी सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हो उसके पॉकेट से फ्रॉम वन टाइम फी, दैट इज हाई टिकट. तो 10 लाख का 10% कितना हुआ, 1 लाख. इफ यू आर चार्जिंग 1 लाख रुपीज फॉर दिस पर्सन, इट इज अ हाई टिकट. तो इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाई टिकट जो है वो हर किसी के लिए अलग होता है. मतलब अगर कोई महीने का 10 लाख कमाता है, इट मीन्स दैट वो साल का 1.2 CR कमाता है, तो उसके लिए हाई टिकट जो होगा वो कितना होगा, अराउंड 10 लाख 12 लाख, राइट, बिकॉज दैट इज अ 10% ऑफ हिज एनुअल इनकम. So like that what you have to do, you have to write the paying capacity of all these people, high ticket paying capacity. जैसे मैं बोलता हूँ कि IT प्रोफेशनल वाले की 1 लाख रुपीज है ऑन एन एवरेज. दूसरा है बिजनेसमैन. नाउ आई नो दैट द पीपल दैट आई एम गोइंग टू कैटर आर मैन्युफैक्चरर्स और गुड अमाउंट ऑफ बिजनेसमैन हु आर मेकिंग एटलीस्ट 50 लाख to 1 CR a year. सो उसके हिसाब से उनकी जो हाई पेइंग कैपेसिटी होगी दैट विल कम अराउंड 10 लाख समथिंग, राइट. सो लाइक दैट आपको सबकी पेइंग कैपेसिटी लिखनी है कि किसकी क्या पेइंग कैपेसिटी है. ओके, दैट इज द सेकंड थिंग. देन थर्ड इज दैट पेन पॉइंट. नाउ यू हैव टू राइट द पेन पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस पीपल. जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ IT प्रोफेशनल. ठीक है, IT प्रोफेशनल. अब IT प्रोफेशनल का पेन पॉइंट क्या है कि उसके जिंदगी में टाइम नहीं है. ठीक है, सुबह जाता है 9 to 5 करता है, घर आता है, ट्रैवल करता है, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाता है, राइट. तो ये सारी चीजें क्या है, उसके पेन पॉइंट है कि उसको अगर आप ऐसा बोलोगे कि इंटेंस तेरे को 1 घंटा ट्रेनिंग करनी है तो वो नहीं कर पाएगा. वाई, बिकॉज उसका जो पूरा शेड्यूल है, उसका जो खाना है वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, राइट. वैसे ही जो डॉक्टर है उसका अलग कोई पेन पॉइंट्स होंगे, कोई इंजीनियर है उसके अलग पेन पॉइंट्स होंगे, कोई बिजनेस प्रोफेशनल्स है उनके अलग पेन पॉइंट्स होंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द पेन पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस पीपल. ओके, एंड देन यू हैव टू गिव देम नंबर और यू कैन स्केल देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. आपको देखना है सबसे ज्यादा पेन पॉइंट कहाँ पे है. क्या IT प्रोफेशनल में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है, क्या डॉक्टर में सबसे ज्यादा पेन पॉइंट है, क्या बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है. उस हिसाब से आपको 1 to 10 स्केल के ऊपर क्या करना है, उसे नंबर देना है, पॉइंट करना है. एंड देन लास्ट इज द स्किल मैच. ठीक है, व्हाट इज द स्किल मैच. लेट्स से आई वांट टू स्टार्ट अ फिटनेस कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन. फर्स्ट इज दैट, कैन आई अंडरस्टैंड हाउ डाइट वर्क. क्या मुझे डाइट कैसे काम करता है हर एक यूनिक बॉडी के लिए मुझे पता है. क्या मुझे पता है एक्सरसाइज कैसी होती है. एम आई द एक्सपर्ट ऑफ हाउ टू डू द एक्सरसाइज. ठीक है, क्या मुझे सेल्स आता है, कैन आई डू द सेल्स ऑनलाइन. व्हाट इज दिस, दिस आर ऑल द स्किल्स दैट यू हैव टू रिटर्न. सो ये जो सारे प्रोफेशंस है उनके सामने जो जो आपको स्किल लगने वाले हैं, इट मीन्स दैट सर्विस को डिलीवर करने के लिए जो स्किल आपको लगने वाले हैं वो सारे स्किल आप लिख लो उनके सामने. एंड देन यू हैव टू सी कि जैसे मान के चलो 3 मेजर स्किल है जो मैंने डिसाइड किया मैं IT प्रोफेशनल को टारगेट करूंगा. 3 मेजर स्किल ये है कि बॉडी टाइप के हिसाब से मुझे डाइट बनाना आना चाहिए, फिर मुझे बॉडी टाइप के हिसाब से एक्सरसाइज बनाना आना चाहिए, एंड थर्ड इज दैट आई हैव टू नो हाउ टू सेल टू दोस पीपल. दीज आर द 3 स्किल दैट आई हैव टू लर्न. लेट्स से मेरे को मैं अच्छा सेल कर सकता हूँ एंड I know how diet work, but I don't know how to like create the workout plan for a unique body type. Now this is skill gap that you have. This is a skill gap that you have. What you have to do now? Learn this skill. ठीक है, जो भी स्किल गैप है उसको आपको सीखना है एंड यू हैव टू फुलफिल दैट. एंड इफ यू डू दिस थिंग यू विल फिगर आउट योर नीश. ठीक है, तो नीश के अंदर 2 ही चीजें होती है जो आपको समझनी है और उसके अंदर ये 4 पॉइंट है. पहला है व्हाट एंड सेकंड इज हु. व्हाट एंड हु का इंटीग्रेशन जो होता है उसे हम नीश कहते हैं.
मतलब मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ हाउ टू गेट फिट इन अ बिजी शेड्यूल, किसके लिए कर रहा हूँ, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। अब ये क्या हो गया, ये हो गई मेरी नीश। I actually help IT professionals to get fit with a busy schedule. Only 30-minute workout a day. Okay, no eating at home, home food, ऐसा कुछ नीश हो गई मेरी, राइट। तो नीश जो होता है वो क्या होता है, इन्हीं दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, बाकी कुछ नहीं है। अब दूसरी चीज है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं नीश फाइंड करने में। तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि क्या होता है। आपको सबको पता है Amazon, ठीक है, Amazon आपने बहुत बार ऑर्डर भी किया होगा Amazon से। तो जब Amazon 1995 में चालू हुआ था, ओके, व्हेन Amazon स्टार्टेड इन 1995, तो उस टाइम पे Amazon बस ऑनलाइन बुक सेल करता था। Amazon used to sell only books online, and now Amazon sell everything, right? तो ये क्या नीश क्या थी, पहले बुक थी, बुक से चालू किया एंड देन धीरे धीरे एक्सपांड टू ऑल द नीशेस। वही करना होता है, पहले आप एक सिंपल सा नीश पकड़ते हो उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, ठीक है, और फिर क्या करते हो, धीरे धीरे एडजेसेंट नीशेस के अंदर एक्सपांड करते जाते हो और पूरा मार्केट फिर कैप्चर करते हो। सो ऑलवेज स्टार्ट विद द नीश एंड देन एक्सपांड टुवर्ड्स द मार्केट, ठीक है। दैट इज द सेकंड थिंग। आई थिंक क्लियर है किस तरीके से नीश फिगर आउट करनी है मार्केट के लिए। देन क्लाइंट एवेटार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइंट एवेटार? क्लाइंट एवेटार का मतलब बड़ा सिंपल है, हु, ठीक है, हम किसको बेचना चाहते हैं, व्हाट इज अवर टारगेट ऑडियंस, हु इज माय आइडियल कस्टमर पर्सोना, वो है मेरा क्लाइंट एवेटार। तो क्लाइंट एवेटार कैसे फाइंड करना है, यू हैव टू राइट एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, ठीक है। एंड मेक श्योर करो जब आप एटलीस्ट इतना नहीं बना रहे, या इसको मैं बोल सकता हूँ 10 भी, जब तक आप महीने का इतना नहीं बना रहे ना 10 लाख या समटाइम 1 CR ऑल्सो, एक ही क्लाइंट एवेटार को कैटर करो। यू डोंट हैव टू कैटर टू 3 डिफरेंट क्लाइंट एवेटार, ओके, बिकॉज मार्केट का पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है। सो हमेशा याद रखो कि क्लाइंट एवेटार जो है वो हमेशा एक होना चाहिए। मतलब जैसे ये यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे थे आईटी प्रोफेशनल वाला, ठीक है। अब ये जो आईटी प्रोफेशनल है, इसको अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो इसके सारे पेन पॉइंट लिखो, इसका पूरा दिन का रूटीन लिखो, ठीक है, कौन सी चीजें इसको नाइट में सोने नहीं देती, वो सारे पॉइंट्स लिखो। क्यों, यहाँ पे हम ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज आप जितना बेहतर अपने क्लाइंट को जान पाओगे, जितना ज्यादा आपको नॉलेज होगा उसका, उतना बेहतर तरीके से आप मैसेजिंग क्रिएट कर पाओगे, उतना बेहतर आपका ऑफर क्रिएट होगा, राइट। सो योर biggest job is, once you find the niche and once you find the market, is to understand your client, is to understand everything about him, ठीक है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एआई टूल्स का यूज करो। सो आई विल सजेस्ट एआई टूल कॉल्ड Claude.ai, ठीक है, जो Claude.ai है उसका आप यूज करके क्लाइंट एवेटार फिगर आउट कर सकते हो। देन वंस यू फिगर आउट द क्लाइंट एवेटार, एंड यहाँ पे हमारे केस में चलो हम यहाँ पे हम बोले आईटी प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल अबाउट 30 मेल मैन, इनको हम टारगेट कर रहे हैं। तो अभी ये जो आईटी प्रोफेशनल अबाउट 30 मेल है, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसकी सारी दिनचर्या है, सब कुछ यहाँ पे आएगा क्लाइंट एवेटार के अंदर, ठीक है। ये हमको काम कर किधर आएगा, जब हम ऑफर क्रिएट कर रहे होंगे, जब अपन मैसेजिंग क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है, जब एड बना रहे होंगे या आउटरीच कर रहे होंगे, उन सारी चीजों में ये इंफॉर्मेशन हमको काम आएगी। तो जितना डिटेल में आप अपने क्लाइंट को जानते हो, उतना ही बेहतर तरीके से आप सेल कर सकते हो, इसको याद रखना। देन problem statement, it means that what we are going to solve for them, what we are solving for them, कौन सा पेन पॉइंट है एक। always remember, always solve one big problem rather than solving 3 different kind of problem. Always solve one big problem that makes them, keeps them awake at the night, ठीक है। तो इन लोगों के लिए क्या हो सकता है कि मैं कंपनी के अंदर काम करता हूँ, मैं एक अच्छे हायर पोजीशन के ऊपर हूँ एंड आई एम नॉट फिट, सो जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते। इट इज जस्ट वन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है जो वो लोग रोज फेस कर रहे हैं,
राइट? सो नाउ यू हैव टू हिट ऑन दैट प्रॉब्लम. आपकी मैसेजिंग, आपकी एड, आपकी कॉपी, आपकी ऑफर उस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हिट करनी चाहिए. ठीक है? सो लाइक दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द प्रॉब्लम दैट दिस पीपल आर फेसिंग. ओके, जितने भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम की लिस्ट यहाँ पे आप लिख दो, ये जो आईटी प्रोफेशनल फेस कर रहा है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएट अ ऑफर दैट कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है? तो आपको एक ऑफर क्रिएट करनी है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है. तो अभी ऑफर के अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है, ऑफर कैसे बनानी है. ऑफर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है. ठीक है, और फॉर्मूला ये है कि ड्रीम आउटकम मल्टीप्लाई बाय व्हीकल डिवाइडेड बाय टाइम डिले मल्टीप्लाई बाय एफर्ट एंड सैक्रिफाइस. सो आई विल एक्सप्लेन दिस कि ये बेसिकली क्या है ड्रीम आउटकम. ठीक है, ड्रीम आउटकम. ड्रीम आउटकम मतलब व्हाट इज माय ड्रीम आउटकम, व्हाट इज द गोल दैट आई वांट टू अचीव. ठीक है, वो क्लियरली उनको पता होना चाहिए. जैसे इफ आई एम आईटी प्रोफेशनल, माय ड्रीम आउटकम इज दैट इन द नेक्स्ट 90 days आई वांट टू लूज एटलीस्ट 10 to 12 kg. ठीक है, विदाउट लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड हेवी डाइट. हेवी डाइट भी नहीं करनी, लॉट ऑफ एक्सरसाइज भी नहीं करनी, एंड आई वांट टू लूज 10 to 12 kg ऑफ वेट. व्हाट इज दैट, दैट इज माय ड्रीम आउटकम. ओके, देन व्हीकल. व्हीकल मतलब what is the vehicle that you are going to use to solve that problem for them. ठीक है, कौन सा vehicle आप यूज करने वाले हो. It means that you are going to give them recorded course to solve that problem. Are you going to give them one-on-one coaching to solve that problem? Is it going to be done with you? It means that they are going to be recorded plus one-on-one sessions. Is it going to be group coaching? What is your vehicle that is going to help them to solve that problem. ठीक है, वो आपकी vehicle क्या है वो आपको मेंशन करनी है. एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग इनिशियली व्हाट आई सजेस्ट इज दैट स्टार्ट विद द व्हीकल जिसके साथ जो रिजल्ट है वो सबसे ज्यादा अचीवेबल है. मतलब कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर फिटनेस की मैं बात करूं, एंड यू हैव 3 ऑप्शंस कि मैं रिकॉर्डेड कोर्स दे सकता हूं, मैं ग्रुप कोचिंग दे सकता हूं, और मैं वन ऑन वन कोचिंग दे सकता हूं लाइव में. ठीक है, लाइव वन ऑन वन कोचिंग. सो ऑलवेज स्टार्ट विद दिस लाइव वन ऑन वन कोचिंग. Why? Because you do not have the testimonial जहां पे लोग बोले कि हाँ ये बहुत अच्छा बंदा है और मैं इसकी रिकॉर्डिंग कोर्सेस ले लूंगा और मेरे को रिजल्ट आ जाएगा, ग्रुप कोचिंग में रिजल्ट आ जाएगा. बिकॉज इट इज नॉट अगेन पर्सनलाइज बट दिस इज अ पर्सनलाइज लाइव थिंग. सो ये सबसे ज्यादा हाई चांसेस है अगर कोई आपके साथ जुड़ता है और वो आपकी फिटनेस कोचिंग ले रहा है, तो दिस मॉडल इज गोइंग टू वर्क इनिशियली, नॉट रिकॉर्डिंग और ग्रुप. तो जब आप व्हीकल चूज कर रहे हो ना सामने वाले को रिजल्ट देने के लिए, तो आपकी वो व्हीकल ऐसी होनी चाहिए जिसको यूज करके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि क्लाइंट कुछ भी ना करे तब भी रिजल्ट आए, या कम एफर्ट में भी रिजल्ट आए. आपके एफर्ट ज्यादा होते हैं बट इनिशियली वैसा ही होना चाहिए. दिस इज अ इवोल्यूशन. ठीक है, ये सब इवोल्यूशन होता है. मतलब पहले आप वन ऑन वन चालू करोगे, उसके बाद ग्रुप कोचिंग चालू करोगे, फिर लोगों को ग्रुप कोचिंग से रिजल्ट आने लगेगा, फिर आप रिकॉर्डेड कोर्सेज करोगे. डायरेक्टली रिकॉर्डेड कोर्सेज चालू करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, देन पीपल से काम नहीं करता, ऐसा नहीं होता. ठीक है, एंड देन टाइम डिले. टाइम डिले का मतलब ये है कि कितना अपने को टाइम लगने वाला है उस गोल को अचीव करने के लिए. जैसे यहाँ पे मैंने बोला था 90 days. सो 90 days इज द पीरियड दैट इज गोइंग टू टेक टू अचीव द गोल, दैट इज 10 to 12 kg लूज करना है. दिस इज द टाइम डिले. तो ये टाइम डिले जितना कम होगा उतना ज्यादा आपकी ऑफर या आपका प्रोडक्ट लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे. ठीक है, हमेशा याद रखना टाइम डिले मतलब अगर मैं इसको 0 कर दूं, एंड एफर्ट और सैक्रिफाइस मतलब जितना एफर्ट सामने वाले को लगाना पड़ेगा रिजल्ट के लिए उसको 0 कर दूं, तो ये जो है नीचे अगर नीचे डिवीजन में अगर 0 हो गया तो इट इज इनफाइनाइट. ठीक है, मतलब इनफाइनाइट % चांस है कि रिजल्ट आएगा ही आएगा, मतलब 100% रिजल्ट आएगा, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट हमारा आइडियली गोल ये होना चाहिए कि सबसे कम टाइम में हम किस तरीके से रिजल्ट दे सके लॉजिकली, एंड एफर्ट एंड सैक्रिफाइस मतलब सामने वाले की जो एफर्ट लग रहे हैं उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए, वो कम से कम एफर्ट में वो किस तरीके से उस गोल को अचीव कर सकता है. जैसे मैं 3 व्हीकल का अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एक है रिकॉर्डिंग कोर्सेज, सेकंड है ग्रुप कोचिंग, एंड थर्ड इज योर वन ऑन वन. तो देखो सबसे ज्यादा एफर्ट इसमें किस में लगेंगे, रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा एफर्ट है. उसको हर रोज बैठना है, देखना है,
फिर एक्सरसाइज करना है, फिर डाइट फॉलो करना है, आप कुछ नहीं कर रहे, बस रिकॉर्डिंग दे दिए। सामने वाले के एफर्ट बहुत ज्यादा है। ग्रुप कोचिंग में भी सेम है कि 10 लोग बैठे हैं, फिर उसको देखना है, फिर फॉलो करना है, वो आपसे वन ऑन वन बात नहीं कर सकता। देर आर एटलीस्ट मोर एफर्ट देन वन ऑन वन। वन ऑन वन में क्या है, सबसे कम एफर्ट है इन 3 मॉडल के अंदर। तो चांसेस क्या है कि इट इज गोइंग टू वर्क एंड इट विल नॉट वर्क इन द इनिशियल फेजेस, राइट। सो हम आपका गोल ये होना चाहिए कि सबसे कम टाइम कैसे लगे और सबसे कम एफर्ट में उसको कैसे रिजल्ट आए, and then what is your dream outcome that you want to achieve or a client want to achieve, and then what is going to be the vehicle for the client that you are going to use to give him the result or her the result। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो आपको पहले क्लियर करनी है। So if you guys just follow this step every day for next 180 days, you are going to hit this goal. It is not a rocket science, ठीक है। आपको बस एक्शन लेना है। जो भी चीजें मैंने आज आपको सिखाई, उन सारी चीजों के ऊपर अगर आप एक्शन लोगे तो बहुत आसानी से आप इस गोल को हिट कर सकते हो इन 180 डेज और यू कैन से 6 मंथ। ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दैट आई रियली वांट टू कवर ओवर हियर इज दैट कि ये लोग, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। मतलब मैंने इतने सारे कोचेस को देखा, इतने सारे एजेंसी ओनर्स को देखा है जो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो कि स्केल नहीं कर पा रहे। वो गलती ये करते हैं कि दे हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट एंड अ लॉट ऑफ केओस, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन दे आर नॉट एबल टू स्केल। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एक रूल ऑफ थंब है जो आपको फॉलो करना है, एंड दैट रूल ऑफ थंब इज दैट unless and until you hit at least 10 lakh per month, and in most of the cases it is 1 CR a month, ठीक है, 1 CR a month, you are only going to have one product and one service, and you are going to only serve one client avatar, and you are going to use only one channel। अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। जब तक इस गोल को आप अचीव नहीं कर लेते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इस गोल को, आपके पास 10 प्रोडक्ट नहीं होंगे। यू ओनली हैव वन प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू स्केल दैट प्रोडक्ट, ठीक है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रोडक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई टिकट प्रोडक्ट। इट मींस दैट उसका जो प्राइस है वो अच्छा खासा है। सेकंड इज दैट वन एवेटार। जैसे अभी हमने सीखा कि एक पर्टिकुलर एवेटार को आपको कैटर करना है, और मैं बहुत श्योर हूं कि आप कोई भी एवेटार पकड़ोगे एक नॉर्मल मार्केट के अंदर, तो आप इस नंबर को चेस कर सकते हो बाय जस्ट डूइंग इट कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विद अ वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको 10 एवेटार को कैटर करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं बिजनेस ओनर्स को भी सिखाता हूँ, फिटनेस कोचेस को भी सिखाता हूँ मैं, और दुनिया भर की चीजें करता हूँ। यू डोंट हैव टू डू दैट। व्हेन यू हिट दिस गोल्स एंड स्लोली यू ऐड द एडजेसेंट एवेटार। जैसे अगर सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, तो अभी विथ हमारे एग्जांपल के साथ हम आईटी प्रोफेशनल को टारगेट कर रहे थे, मेन अबाउट 30। तो मैं एडजेसेंट क्या करूंगा, आई विल जस्ट टारगेट बिजनेस ओनर्स अबाउट 30 जिनकी प्रॉब्लम सेम है आईटी प्रोफेशनल के हिसाब से। मतलब आईटी प्रोफेशनल के पास भी टाइम नहीं है, बिजनेस वालों के भी पास टाइम नहीं है, इनको भी ज्यादा हैवी डाइट नहीं चाहिए, इनको भी हैवी डाइट नहीं चाहिए, इनको भी शॉर्ट वर्कआउट चाहिए, इसको भी शॉर्ट वर्कआउट चाहिए। तो ये सब चीजें मैच हो रही है। सो इट इज लाइक एडजेसेंट मार्केट फॉर मी, सो आई विल जस्ट जंप इनटू दैट। बट ऐसा कोई बहुत ही अलग मार्केट है लाइक वुमेन who is like post pregnancy, मतलब after pregnancy who want to lose their belly fat like that, अगर मैं उस मार्केट के लिए डायरेक्ट यहाँ से जंप करूंगा तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। व्हाई? बिकॉज उनकी प्रॉब्लम ही टोटली अलग है इन लोगों के कंपैरिजन में। सो डू नॉट डू दिस मिस्टेक। वन एवेटार, वन प्रोडक्ट और सर्विस, एंड देन वन क्लाइंट एक्विजिशन चैनल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वन क्लाइंट एक्विजिशन चैनल। वन क्लाइंट एक्विजिशन चैनल मतलब देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज यू कैन एक्वायर कस्टमर। सो पहला हो सकता है एड्स, सेकंड इज कंटेंट, थर्ड इज आउटरीच। These are the different ways when you are starting you can acquire a customer। आप एड चला सकते हो, आप कंटेंट बना सकते हो, या तो आप आउटरीच कर सकते हो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फिक्स वन चैनल कि कौन से चैनल के अंदर आप अच्छे हो। जैसे आई एम गुड एट एड, सो आई विल जस्ट डू दिस। If I am good at making content, I will just do this. If I am not good at ads, I am not good at making content, I will just do the outreach। ठीक है, अगर ad में अच्छे हो then start with small budget, start experimenting and you will get the client। content के साथ if you are already doing the content, just focus on doing more। ठीक है, just focus on doing more, just focus on doing with a volume and you will slowly start getting client। तो content कैसे बनाना है, उसी client avatar के लिए content बनाना है जिनको हम
टारगेट करना चाहते हैं. सेम विद द आउटरीच. आई एम नॉट डूइंग कंटेंट, आई डोंट नो हाउ टू रन एड्स, देन यू विल डू द आउटरीच. हिट एटलीस्ट 100 न्यू पीपल एवरी डे. हिट का मतलब मारना नहीं है, एटलीस्ट 100 लोग, नए लोगों को आपको रीच आउट करना है. ठीक है, उनको बोलना है दिस इज व्हाट आई डू, क्या आप इंटरेस्टेड है, वॉट एवर इट इज, बट यू हैव टू डू दिस इन अ वॉल्यूम. ठीक है, और ये तब तक करना है जब तक आपका ये गोल अचीव नहीं हो जाता. यू डोंट हैव टू डू आउटरीच, कंटेंट, एड, एवरीथिंग. डोंट डू दैट. ठीक है, बहुत ज्यादा मत फैलो. एक ही चीज को टारगेट करो और जब तक ये गोल अचीव नहीं हो जाता उसी चैनल के थ्रू स्केल करो. सो वन प्रोडक्ट, वन avatar, one channel, that is the goal. And the last point that I want to tell you, all of you guys, because I know most of the people who are watching these videos are Gen Z, and the problem with all of you is that you have a show off culture. ठीक है, you have or we have, I am also Gen Z, so we have a show off culture. It means that जैसे ही पैसा आएगा, you will go on Instagram, you will do the show off, you spend that money on buying stupid stuff, whatever, all the stupid stuff that you think कि जब पैसा आएगा तो आप करोगे. Don't do this. And the reason is that when you are building a business, remember, first of all, it is hard, it is not easy. And second thing is that जब आपके पास पैसा आएगा, do not increase your lifestyle. ठीक है, पहले ऐसे रहते थे, बाद में वैसे ही रहो. लाइफस्टाइल को इंक्रीज मत करो क्योंकि वो पैसा लगने वाला है. ठीक है, सो लर्न नॉट टू इंक्रीज योर लाइफस्टाइल, इट इज गोइंग टू सर्व यू इन अ लॉन्ग टर्म. ठीक है, सो दिस, आई होप जो भी पॉइंट मैंने अभी आपको बताया क्लियर है एंड आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी. सो इफ यू वांट कि मैं इसी टाइप का आगे कंटेंट बनाऊं, देन, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या आप वीडियो बना सकते हो. बिकॉज आई एम गोइंग टू फोकस ऑन ऑनलाइन बिजनेस, जैसे मैंने बताया पहले, एंड जो भी मेरी जर्नी है, जो भी लेसन्स मैं सीख रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. And if you're someone who want to engage more with the community, you want to learn more than just YouTube videos, going too deep into all this stuff, then you can join the community, जहाँ पे मैं सारी चीज़ों के साथ लाइव करते हैं हम लोग, बिजनेस डायग्नोस करते हैं एक दूसरे के, एंड वी ऑल्सो हेल्प ईच अदर टू स्केल देयर बिजनेसेस. सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द कम्युनिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इनटू कम्युनिटी आर ऑल बिजनेस ओनर्स. सो माइट बी यू विल फाइंड सम क्लाइंट्स ओवर देयर ऑल्सो. ठीक है, so I hope this is a valuable video for you and मिलते हैं next video में. Thank you so much for watching.